Good morning, everyone. So, beta, in previous lecture, we were discussed about the meaning of commercial bank and meaning of central bank, and we just discussed some functions of commercial bank also. So, you know that, sir, there are two functions of commercial bank. There are two functions of commercial bank, sir. So, the first function is primary function. Primary function and the another one is secondary function. So primary functions further classified into two parts, that is called acceptance of deposit and advancing of loan. Now beta, in previous lecture we were discussed about the primary functions of commercial bank. There are two functions of commercial bank really. The first one is primary functions and another one is secondary function. Primary function is further divided into two parts, that is called acceptance of deposit and advancing of loan. So public deposit their money in commercial bank in four types, in four categories. Public अपने पैसे जमा करेगी in commercial bank, that is called acceptance of deposit. So the 4 point is by which the public deposit their money. It's called fixed deposit, recurring deposit, saving account, and the last one is current account. So we already done about fixed deposit and recurring deposit. So मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में. सर इन फिक्स डिपॉजिट a lump sum amount is of money is deposited. एक lump sum amount जमा करते हैं in the bank. A lump sum amount of money is deposited in the bank for a fixed period of time. Like आपने 1 लाख रुपए जमा करे हैं, 2 लाख रुपए जमा करे हैं, 3 लाख रुपए जमा करे हैं for 5 years, for 10 years. After the maturity of fixed period, maturity सर होने के बाद after the maturity of fixed period, the customer can get back their amount along with the rate of interest. सर किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए जमा करे हैं 5 साल के लिए और उसे 5 साल के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे along with the rate of interest. That is called fixed deposit. Sir, the rate of interest in fixed deposit is between 9 to 11%. Is between 9 to 11%. The next point is recurring deposit. Sir, in recurring deposit, a fixed amount of money. फिक्स्ड में सर एक लमसम अमाउंट था. वी डोंट नो कि अमाउंट कितना होगा, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. बट इन रिकरिंग डिपॉजिट वी नो द एग्जैक्ट अमाउंट विच द पब्लिक डिपॉजिटेड इन द बैंक. सर लाइक 5,000 की हमने रिकरिंग डिपॉजिट करा दी, आरडी करा दी 5,000 रुपये की, 5,000 रुपीज़ की हमने एक आरडी करा दी. सो सर बिटवीन 5,000 वी हैव टू पे a fixed amount of money every month, or you can say every quarter. Sir, every month or every quarter we deposited our money in the bank for 5 years, for 10 years. Sir, RDs for 5 years or 10 years. In every month or every quarter we deposited a fixed amount of money. For example, 5,000 rupees. 5,000 rupees is deposited every month for fixed period like 5 years or 10 years. After the maturity, the customer can get back their amount of money along with the rate of interest. सर कस्टमर को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. बस सर फिक्स डिपॉजिट में बिटवीन 9 to 11% होता है, यहाँ पे सर 7 to 9% इंटरेस्ट होगा. मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेविंग एंड करेंट अकाउंट. द अबाउट 2 point इज डिपॉजिट एंड द लास्ट एंड द बिलो 2 point इज अकाउंट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड डिपॉजिट ना. ये डिपॉजिट कर रहे हो, यहाँ पे क्या करें सर हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं. So sir, in saving account, it is just meant for small savers. जो अपने small savings करना चाहते हैं उनके लिए सर ये सेविंग अकाउंट है. जो अपनी स्मॉल सेविंग्स करना चाहते हैं, स्मॉल सेवर्स जो हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट है सर ये.
Saving account is just meant for small savers who whenever they want to deposit their money they can deposit it. So जब मन चाहे वो अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं. Whenever they want to deposit their money they can deposit it. There is no restrictions. And whenever they want to withdraw their money they can withdraw it. There is also no restrictions in withdrawal of money. सर यहाँ पे कोई डिपॉजिट और विड्रॉल में कोई भी restrictions नहीं होगा. इन सेविंग अकाउंट एवरी पर्सन डिपॉजिट देयर मनी इन स्मॉल प्रपोर्शंस. ये स्मॉल सेविंग्स के लिए होता है सर सेविंग अकाउंट. बेसिकली सर इसका परसेंटेज होगा आपका बिटवीन 5 to 7%. मैं मेंशन कर रहा हूँ हमेशा बिटवीन 5 to 7, 7 to 9 बिकॉज द डिफरेंट banks pays different rate of interest to the customer. Private bank pays a higher rate of interest as compared to गवर्नमेंट बैंक्स लाइक BOB एंड SBI के कंपेयर में सर HDFC ICICI के जो बैंक इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे सर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज करंट अकाउंट. सर सेविंग अकाउंट इज जस्ट मेंट फॉर स्मॉल सेवर्स जो अपनी स्मॉल सेविंग्स करना चाहते हैं. इट्स कॉल्ड सेविंग अकाउंट. एंड करंट अकाउंट सर करंट अकाउंट इज जस्ट मेंट फॉर बिजनेसमैन. सर सेविंग अकाउंट सारे पब्लिक के जितने भी पर्सन है वो ओपन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट. बट करंट अकाउंट इज जस्ट ओपन फॉर बिजनेसमैन. जो बिजनेसमैन है उनके लिए करंट अकाउंट होगा या बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट होगा. सर कोई बिजनेस लाइक रिलायंस लिमिटेड लाइक A लिमिटेड B लिमिटेड उनके लिए करंट अकाउंट ओपन होगा. वाई सो सर ऐसा क्यों होता है बेटा बिकॉज इन सेविंग अकाउंट यू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ यू कैन डिपॉजिट इन एनी लिमिट. But when you go for withdraw your money, then there is a limit. There is a restrictions of limit. एक limits के according आप withdraw कर सकते हो in per day. But in current account, बेटा you can withdraw any amount of money. Any amount of money और you can say that कि आपको जितने पैसे withdraw करने आप current account में withdraw कर सकते हो deposit कर सकते हो. बिजनेसमैन है सर बिजनेस के और बिजनेसमैन के अकाउंट ओपन कराओगे. इफ सेविंग अकाउंट आपने ओपन कराया है तो बैंक आपसे पर्पस पूछेगा ना कि आपके पास पैसे आए कहाँ से. बट वेन यू शिफ्ट अप इन करंट अकाउंट तो आप बता सकोगे ना कि आपका बिजनेस है. अगर आप इन सेविंग अकाउंट बता रहे हो आपका बिजनेस है और पैसे आप 1-2 करोड़ 5 करोड़ पर जमा कर रहे हो तो बैंक आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है. बट इन करंट अकाउंट बेटा यहाँ पे हम बिजनेसमैन के लिए ओपन करेंगे जहाँ पे बैंक सर नो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा इन बिजनेसमैन को. सर क्वेश्चन आता है क्यों बिजनेसमैन को सर क्यों बिजनेसमैन को इंटरेस्ट मतलब इन करंट अकाउंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन देयर इज नो इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक. सर कोई भी इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड नहीं करेगा. देयर इज नो इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय द बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट is much higher than the loan granted by the bank to the needy borrowers. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या सर the rate of interest in current there is no rate of interest in current account holder in current account because the amount deposited by the current account holder in current account is much higher than the loan granted by the bank to the needy borrowers. So जो लोन विड्रॉ कर रहे हैं लाइक मैंने अपने पैसे जमा करे 5 करोड़ रुपए बैंक में और सर लोन लेने वाले कम पर्सन है. बैंक की इनकम तो सर वहीं से हो रही है ना जो पर्सन लोन ले रहे हैं उनसे इंटरेस्ट मिल रहा है और मुझे इंटरेस्ट दे रहा है. अगर बैंक करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देगा सर तो इतने सारे बिजनेसमैन हैं जिनके बहुत सारे आपने देखा होगा 5-5 सेकेंड में सर $1 मिलियन आ रहे बिजनेसमैन के पास. सर क्या होगा क्या उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा नहीं सर. करंट अकाउंट होल्डर देयर इज नो इंटरेस्ट रेट इन टू करंट अकाउंट होल्डर गिवन बाय द बैंक. हाँ सर इन करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. सर एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है इन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है टू द करंट अकाउंट होल्डर. इट मीन्स इन फिक्स डिपॉजिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 to 11, इन रिकरिंग 7 to 9, इन सेविंग 5 to 7. इन करंट अकाउंट देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज द करंट अकाउंट होल्डर enjoys the overdraft facilities rather than the receiving a rate of interest. तो मैंने ये सीक्वेंस वाइज देखा है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. आप पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट कर सकती है बैंक के पास इन 4 टाइप्स. अब एडवांसिंग ऑफ लोन पे शिफ्ट अप होते हैं सर कि बैंक कैसे लोन प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को. अभी तो पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करिए एंड ग्रांट द सेम टू द नीडी बोरोवर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन सर. ठीक है. The first point is overdraft facilities. Sub bank provide
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज लाइक एडवांसिंग ऑफ लोन, लोन है बेटा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या है, लोन है सर। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज? बेटा ओवरड्राफ्ट मीन्स ओवरड्राफ्ट इज जस्ट मेंट फॉर करंट अकाउंट होल्डर। सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ओनली करंट अकाउंट होल्डर को मिलेगी और किसी को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज लाइक दैट अ करंट अकाउंट होल्डर, the amount in current account is like 10 lakh rupees. So the current account holder withdraw a excessive amount over 10 lakh rupees. सर 10 लाख से ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर सकता है जो करंट अकाउंट होल्डर है, लाइक 15 लाख से कुछ एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकता है, ये ओवरड्राफ्ट है ना। सर एक लिमिट फिक्सअप करेगा बैंक कि आप कितना विड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्कोर, आपके जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बैंक में उसके अकॉर्डिंग बैंक क्या करेगा, आपकी एक लिमिट सेटअप करेगा कि लाइक आपके बैंक में 1 लाख रुपए तो आप एक्स्ट्रा कितने विड्रॉ कर सकते हो। और सर ये लोन ही तो है, व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक आफ्टर टेकिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, द बैंक डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट। सर जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे बैंक में तो बैंक अपने ओवरड्राफ्ट के पैसे डिडक्ट कर लेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, इट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? सर बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड करा मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए ने सर बिल रिसीवेबल करा और मिस्टर बी ने बिल्स पेएबल मिलेगा। सर जो पर्सन है बिल रिसीवेबल वाला, द होल्डर ऑफ बिल रिसीवेबल इज डिस्काउंट देयर बिल फ्रॉम द बैंक। सर फॉर एग्जांपल 3 महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है, अमाउंट है 1 लाख रुपए। अब सर मिस्टर ए को 2 महीने बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई कुछ, तो मिस्टर बी ने अपने बिल को, मिस्टर ए ने अपने बिल को बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा लिया कि 1 मंथ के बाद इस बिल की मैच्योरिटी पूरी होगी। बिल है 1 लाख का, मंथ है 3 मैच्योरिटी के लिए, 2 मंथ हो चुके हैं, आफ्टर 1 मंथ बचा हुआ है सर। आफ्टर 2 मंथ मिस्टर ए बैंक के पास चले गए, उन्होंने कहा मेरे पास बिल रिसीवेबल है, मुझे 1 लाख रुपये मिस्टर बी से लेने हैं, लेकिन मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, मेरे बिल को आप रख लो, बिल रिसीवेबल को बैंक को दे दिया और बैंक से 1 लाख के बदले कुछ पैसे ले लिए। ध्यान रखना बेटा, 1 लाख के बदले 1 लाख नहीं मिलेगा, कुछ कम पैसे मिलेंगे सर। तो बैंक देखो ना सर, मैच्योरिटी के पहले, बैंक मैच्योरिटी के पहले सर मिस्टर ए को एडवांसिंग ऑफ लोन, लोन प्रोवाइड कर रहा है किसके बदले, बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म लोन। टर्म लोन, सर टर्म लोन इज वेरी सिंपल सर, द लोन विच इज प्रोवाइडेड फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड, ध्यान रखना बेटा, वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, विल शेयर विथ योर नोट्स, एंड इन नोट्स को बेटा लिख लेना एज कम्पेयर टू योर बुक्स। ये आपको जो लैंग्वेज होगी वो ज़्यादा ईजी होगी और ये आपने नोटिस कर चुका होगा, ठीक है। सर व्हेन द बैंक प्रोवाइड लोन फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, सब जब बैंक वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड term loan, that is called term loan. When the bank provide loan for a very shorter period of time, that is called term loan, ठीक है। and the last point is, ये हम पढ़ क्या रहे हैं सर, हम ये पढ़ रहे हैं एडवांसिंग ऑफ लोन के कुछ 4 पॉइंट्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लोन विच द बैंक प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक। द फर्स्ट पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट, द नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, द थर्ड पॉइंट इज टर्म लोन, द लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द पब्लिक for a very shorter period of time, for a very shorter period of time, that is called term loan beta, that is called term loan. And the last point is cash credit, cash credit. अब सर what do you mean by cash credit? सर टर्म लोन था आपका for a very shorter period of time के लिए, ठीक है। So cash credit is for medium and long term loan,
मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन के लिए क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। सब व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट? When the loan is given by the bank, when the loan is given by the bank to the public for medium and long term, like you can say that medium term loan is for between 3 to 5 years. When the public repay their loans between taking time between 3 to 5 years called medium term, and when the public take their times to repay their loans between 5 to 10 years, that is called लॉन्ग टर्म लोन। सो जब 3 से 5 साल का टाइम लिया जाए पब्लिक ने, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम, एंड बिटवीन 5 to 10 years का टाइम ले पब्लिक रिपे करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो ये प्राइमरी फंक्शंस है बेटा। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, इज टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। एंड सेकेंडरी फंक्शन इज़ नॉट इन अवर कोर्स। सेकेंडरी फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है सर, बट फिर भी हम सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ेंगे जस्ट फॉर नॉलेज। मैंने कहा ना, डोंट गो फॉर मार्क्स बेटा, डोंट गो फॉर मार्क्स, जस्ट गो फॉर नॉलेज बेटा, जस्ट गो फॉर नॉलेज। मार्क्स के पीछे नहीं भागना है हमें, नॉलेज के पीछे भागना, बिकॉज इन एवरी एग्जामिनेशन बेटा बैंकिंग का पोर्शन आएगा ज़रूर। सो नोट इट डाउन एंड विल शेयर विथ सम नोट्स एंड नोट दोज पॉइंट्स टू बेटा। उन नोट्स को ज़रूर लिख लेना एंड रीड योर बुक्स, जस्ट रीड थ्रूली योर books. So meet you in next lecture along with secondary function of commercial bank. See you soon.